Good evening, ma'am. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening, ma'am. Kindly switch on your cameras. I hope all of you have downloaded the Excel file from Classroom. Yes, ma'am. Ma'am. Okay, so we'll start with Excel today. Let me share my screen. मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी. Ma'am, can you please speak a little bit loud? Okay. I was saying, I hope you all have downloaded the Excel for today's class. Okay. And while submitting your assignments, please do not add comments, neither private comment nor class comment. Please do not add them. Your name, roll number are already visible. You don't have to give them again. It only spams up my email. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, I have one doubt. Yeah. मैम आपने जब हमारी लास्ट क्लास ली थी तब मैम उसके 1-2 दिन पहले आपने एक चीज़ सिखाई थी कि वीडियो में जैसे पावर पॉइंट में अगर हमें वीडियो डालनी हो तो फिर 2 ऑप्शन आते हैं, दिस डिवाइस और ऑनलाइन वीडियो डालकर। तो अगर हम दिस डिवाइस को मतलब चूज़ करेंगे फिर मैम ये तो समझ आ गया था कि जो हमारे पास वीडियो है वो हम कैसे डाल दें इंसर्ट करके। पर मैम दूसरा आपने कहा था कि तो मैम मुझे वो लिंक वाली समझ नहीं आई। मैंने जब खुद ट्राई किया हो नहीं रहा था। जब तुम्हारे पास इंसर्ट का ऑप्शन आया था तो वहीं पे एक साइड में छोटा एरो था, उससे एक दूसरा ऑप्शन आया होगा, लिंक टू फाइल या ऐसा कुछ। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ऑप्शन, बट यही थे, वहीं पे 2 ऑप्शन थे, ईदर इंसर्ट और लिंक इट टू अ फाइल। तो उन दोनों में से वो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, बस वो दिखेगा तब भी, वीडियो आपको प्रेजेंटेशन में तब भी दिखेगी। मैम अगर मैं किसी को मेल करूंगी तो उसको भी वो वाली वीडियो दिख जाएगी जो मेरे पास थी? आपको साथ में वो भेजनी पड़ेगी। अच्छा, तो मैम 2 भेज देंगे ना? 2 फाइल्स भेजनी पड़ेगी। ठीक है मैम, 2 फाइल भेज दूंगी। थैंक यू मैम। तो एक्सेल खोला सबने? तो देखकर क्या पता चल रहा है एक्सेल किस काम आता होगा? क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे स्क्रीन पे? Don't tell me about the data, just the look. It's a data of a college. I'm saying don't tell me about the data. Otherwise screen पे क्या दिख रहा है? Main क्या है? How is it different from Word? क्या है यहाँ पे? सब कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। हाँ, जिन्हें बोलते हैं सेल्स। पलक, if you will not switch on your camera, then I don't want to listen to you. I don't know who you are, Palak. Okay, ma'am. Now I remember. See, dekhkar now I remember. Okay, so then there are, so whenever you have to arrange data in tabular form, in rows and columns, Excel is a very good software available with us. It's not necessary that we have to deal with numbers. We can arrange numbers, we can arrange text, any form of data, but whichever has to be arranged in table, we use Excel. When we use numbers, we have lots of formulas to do multiple types of calculations, the mathematical calculations, statistical calculations, scientific calculations. Okay. So gradually in our course, we have certain projects which involve using different kinds of formulas that we will learn gradually. We'll start with basics today. So this Excel file is called a workbook. It's called a workbook. Okay. This workbook has multiple sheets. They are called worksheets. So on the bottom left, you can see sheet 1, sheet 2 written. They are our sheets. So while sheet 1 is selected, that means we are working on sheet 1, the first sheet. That would mean that I'm moving to the second sheet, that I'm working on the second sheet. So in total, we can add up to
255 sheets. There can be maximum of 255 sheets in a workbook, but of course, the file size would be too heavy, would be so high that even just opening up Excel would take a few minutes. If you would open up such a file, it would take a few minutes. And then if you would do anything, even a simple plus minus, it would take time. Okay. So if you have, of course, very large amount of data, it's better to use other database specific softwares, one of which is MS Access that we will do after Excel. Okay. Okay, so sheet 1, sheet 2 के side में plus बना हुआ है. Plus is for adding new sheets. So you can add new sheets, as many sheets as you want. Now what happened was my sheet 1 was selected. One sheet gets added after the sheet that I'm working on, after the sheet that is selected. Okay. So if you want this sheet 3 to be after sheet 2, all you have to do is simply click, drag and drop. Click, drag and drop. So you can add sheets from this bottom left corner. You can move sheets, change their position. You can delete the sheets. Yeah, Puneet? मैम मेरी जो है फाइल एक्सेल वाली, ये एक्सेल की में ही नहीं, एक्सेल में नहीं खुल रही, मतलब कहाँ पे खुल रही है फिर? पीडीएफ फॉर्म में, और जब इसको ओपन विद कर रहा हूँ तो मैम ऑप्शन भी नहीं आ रहा किसी और के फॉर्मेट में खुलने का. उसमें कुछ तो ऑप्शन ओपन विद में जाने के बाद कुछ ऑप्शंस वहीं पे गिवन होते हैं, कुछ फिर नीचे लिखा होता है एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, ऐसा कुछ होता है. मैम है, अगर है तो फिर वो वहां पे अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा, देन यू वुड हैव टू ब्राउज फॉर इट. जैसे किसी फाइल को ब्राउज करते हैं ना. यस मैम. वैसे जब डाउनलोड किया आपने, नॉर्मल डाउनलोड ही किया है ना? क्या डाउनलोड करा है? क्लासरूम से ही तो डाउनलोड किया है. यस मैम. तो वो पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट हो गई? मैम पता नहीं, पीडीएफ में ही आ रहा है. बाकी सबकी तो खुल गई. Yes, ma'am. यस मैम. हम नहीं खुल गए. नो मैम, मेरी भी पीडीएफ में आई है. तो क्या किया अनन्या? क्या किया अनन्या उसके बाद? If you cannot, try downloading it again. And if you still cannot, the last resort would be I would send you a mail, or you can ask somebody to send you a mail with this file. हम व्हाट्सएप ऐप इसमें चेक कर लेता हूँ, हो रहा नहीं होगा. Okay. So I was saying that if you want to delete a sheet, all you have to do is simply right click on that sheet and then you get the option of deleting it. Okay, right click and then delete. Now you can change the names of these sheets. Like this is about class list. ठीक है, so यहाँ पे all you have to do is double click. या तो double click कर दो, highlight हो जाएगा, या फिर right click करके rename. Double click और right click करके rename. ठीक है. सिमिलरली यू कैन चेंज द कलर्स इफ यू वांट टू. यहाँ पे टैब का जो नाम है उस पे बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए तुम्हें तो. Okay, so whenever we click on any cell, that cell gets selected. So whenever you see this white plus sign, like you can see right now, so this is for selecting a particular cell. Okay, so if I want to copy, I have to first select that cell. I Control C, copy. I'll click somewhere, Control V, paste. Okay. Now, if I, if I hover around a little, then there is this sided arrow. अगर हम उसकी margins पे अपने cursor को लेकर जाएंगे, this means you can move your cell
using this option. This is for moving your cell. ठीक है. White plus sign is for selecting the cell. The four-sided arrow is for moving the cell. All right. Now there are many rows and many columns on every sheet. The rows are given numbers. So first row, second row, third row. All right. Similarly, columns are given alphabets to name them. Okay. So every cell is a combination of a row and column. So like this cell that I've selected, Tanu Singh, this is in C column and third row. So this cell's name is C3. This cell's name is C3. Just नेम बॉक्स जहाँ पे आपके सेल का नेम जो है, जो भी उसका नेम है कि कौन सा रो कौन सा कॉलम है, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है. ठीक है. उसके साइड में जहाँ पे fx लिखा है, fx के साइड में एक बड़ा सा बार है, दैट इज आवर फॉर्मूला बार. आवर फॉर्मूला बार. So this we will discuss later कि whenever we use formulas they appear there. जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे, what happens is आपकी शीट पे आपको आंसर दिखेगा, बट वो आंसर आया कहाँ से, वो फॉर्मूला आपको इस बार में दिख जाएगा. ठीक है. अगर हम सिंपली प्लस भी करते हैं, 2 + 5 = 7, तो आपको सेल में नीचे आंसर दिखेगा 7 और ऊपर फॉर्मूला बार में आपको दिखेगा 2 + 7. ऑलराइट. देन अच्छा, otherwise the look is same, just like Word you have different tabs. This is your quick access toolbar, save, undo, redo. कुछ ऑप्शन सेम भी है, अलाइनमेंट के ऑप्शन सेम भी है. देन ओके, धीरे धीरे मैं ऑप्शंस बताती जाती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस शीट कि इसमें हमें क्या करना है, इससे हमें क्या सीखना है. Let's say that this is a class list of, I think, BCom honors. So let's say I want to make an attendance sheet from this. I want to make an attendance sheet. Attendance sheet मतलब जहाँ पे the sheets that teachers use, जहाँ पे हम PPP mark करते हैं, right? So we already have the names here, we have the roll numbers here. What do we need is कि इसके बाद columns हो बहुत सारे, और उन columns लेकिन इतने, अगर देखो अगर इतने बड़े बड़े जो ऑलरेडी कॉलम्स बने हुए हैं, अगर मैं इसे एज इट इज छोड़ दूं, कुछ चेंज ना करूं, तो इफ आई वुड प्रिंट दिस शीट, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कम कॉलम्स आएंगे मेरे पास एक शीट. मेरे को मल्टीपल टाइम्स ये शीट्स प्रिंट करनी पड़ेगी, एंड देन उन मल्टीपल शीट्स का एंड में जाके एडिशन करना वुड बी अ टास्क. हर को बार बार चेक कर करके मल्टीपल शीट से, राइट. So first of all, what we will do is we'll adjust the size of these columns. ठीक है. कैसे एडजस्ट? अच्छा, सबसे पहले सीरियल नंबर है, वो तो हमें क्लियरली दिख रहा है, कोई इशू नहीं है. उसके बाद है कॉलेज रोल नंबर. आप उस पर क्लिक करके देखो तो ये सारे थोड़े थोड़े कम दिख रहे हैं ना, लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा कम दिख रहा है, इवन कॉलेज रोल नंबर भी कम दिख रहा है. तो हाउ वी कैन एडजस्ट इट, द विड्थ ऑफ दीज कॉलम्स और हाइट ऑफ द रोज इज by keeping our cursor in between two columns, in between names of two columns. So B को मेरे को अगर increase करना है उसका size, तो B और C के बीच में हम cursor को रखेंगे तो double sided arrow आ जाएगा. ठीक है. इस double sided increase और decrease the width. ठीक है. Similarly name पे भी हम कर सकते हैं, सिमिलरली सब्जेक्ट पे भी हम कर सकते हैं. अब ये क्या किया, ये मैंने मैन्युअली अपने आप अंदाजे से विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर दी. अनदर ऑप्शन इज बी और सी के बीच में जब ये डबल साइडेड एरो आ जाए, वी कैन डबल क्लिक. डबल क्लिक करने से वो ऑटोमेटिकली कॉलम का साइज उतना रहेगा जिसमें जितने साइज में उसका टेक्स्ट फिट हो जाए. तो मैक्सिमम लेंथ जितना टेक्स्ट का होगा वो ऑटोमेटिकली उस साइज का हमारा पूरा कॉलम बन जाएगा. ठीक है. सिमिलरली नेम ऑफ द स्टूडेंट पर डबल क्लिक करने पर वो थोड़ा और इंक्रीज हो गया, बिकॉज ओके देयर वाज वन स्टूडेंट्स नेम व्हिच वाज अ लिटिल. डबल क्लिक करने पर सब्जेक्ट के नेम के अकॉर्डिंगली विड्थ एडजस्ट हो गई.
ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, अब और इसकी हमें लुक थोड़ी इम्प्रूव करनी है. तो यहाँ पे देखो, सीरियल नंबर, कॉलेज रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट बोल्ड में है, बट सब्जेक्ट बोल्ड में नहीं है. सब्जेक्ट वाले सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी, कंट्रोल बी. मैम एक बार दोबारा बताना कि डबल क्लिक कहाँ पे करना है. जिस भी सेल को, अगर आपको बी कॉलम की विड्थ को अरेंज करना है तो बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में आप कर्सर को रखोगे तो डबल साइडेड एरो आ जाएगा, तब डबल क्लिक करना है. सब्जेक्ट है, उसमें कुछ सब्जेक्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इन बोल्ड, बट बाकी सारे बोल्ड नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? अच्छा, वैसे एक बार आप लोग बताओ. मैम ऑल सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं. वो ऑल सिलेक्ट कैसे करेंगे? मैम मैम एक एक करके. मैम कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर देंगे. अगर मैं कंट्रोल प्लस ए प्रेस करती हूँ तो उसमें तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा. मैम नॉर्मल मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब ओबी से लेके नॉर्मल क्लिक करेंगे और नीचे तक उसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन फिर बोल्ड. तो ओबी से लेकर मैम जो ऊपर डी लिखा है वहाँ पे जब हम लेके जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन, वहाँ पे एरो बन जाता है नीचे का, उस पर क्लिक करेंगे, सब सिलेक्ट हो जाता है. Did you just try it or have you used Excel पहले? Okay, so okay, rhythm, if we will do this, है ना, तो यहाँ ये क्या, इससे हमें नया ऑप्शन क्या पता चला है, that whenever we click on the name of a row or a column, the whole row or the whole column gets selected. Okay, that's one thing. Secondly, rhythm, if we would use this option, then subject भी bold हट जाएगा फिर, बट सब्जेक्ट तो हमें बोल्ड चाहिए और नीचे वाला हमें बोल्ड नहीं चाहिए. सो किसने बोला था, आई थिंक पलक सेड दिस, कि उसने क्या बोला कि ओबी से लेकर हम नीचे तक पूरा सिलेक्ट करें. राइट नाउ एक्सेल में यूजुअली क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है जिसके साथ में हमें बहुत सारा कुछ उसके साथ में मैनिपुलेशंस करनी होती हैं, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन सब कुछ करना होता है. सो आर वी वुड ट्राई कि हम माउस का यूज कम से कम करें, कीबोर्ड का यूज ज्यादा से ज्यादा करें. ठीक है, तो उसके लिए एरो कीज से आएंगे हम, ध्यान से समझना सब चीजें. ओबी वाले सेल पे एरो कीज से हम लेकर आएंगे, मतलब ओबी वाला सेल हम सिलेक्ट करेंगे, देन वी विल प्रेस कंट्रोल. अच्छा, एक ऑप्शन क्या है, हम शिफ्ट प्रेस करें और डाउन एरो की से एंड तक लेके जाते जाएं. शिफ्ट प्रेस करें डाउन एरो की से करेंगे तो एंड तक हम सिलेक्ट कर लेंगे. दूसरा ऑप्शन क्या है, हम सिर्फ ओबी वाले सेल पे रखें, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों कीज प्रेस करेंगे इकट्ठा, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की जस्ट वंस. जब हम कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस करके फिर एरो कीज को प्रेस करते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज, तब हम जहां तक भी टेक्स्ट होता है वो सारा सिलेक्ट हो जाता है. ओके, कॉलम वाइज भी, रो वाइज भी. अगर आप रो में भी यही करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन राइट एरो की, तो उस रो में जहां तक टेक्स्ट है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा. ओके, सो एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल्ड है ही नहीं, इनका फॉन्ट डिफरेंट है. वन इज कैलिब्री, वन इज कैलिब्री लाइट. तो अगेन बाकी सबका क्या है, कैलिब्री लाइट. तो हम फिर से ओबी पे रख के कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की और कैलिब्री लाइट विल सिलेक्ट. ठीक है, अब थोड़ा सिमिलर दिख रहा है. अब एक और चीज गड़बड़ है, सिर्फ जो ओबी है दैट इज सेंटर अलाइंड, सेल में सेंटर अलाइंड, other subjects are all left aligned. तो again while this text is selected, यहाँ पे ऊपर हमारे पास ऑप्शन है लेफ्ट, सेंटर एंड राइट का. तो वी हैव अलाइनमेंट के लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड. यहाँ पे वी हैव 3 more options. We have actually 6 options. 3 options are left, center and right.
एंड 3 ऑप्शंस आर कि उस सेल में अगर टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा है तो उसको आपको टॉप पे चाहिए, मिडिल पे चाहिए कि बॉटम पे चाहिए, विद इन द सेल इटसेल्फ। ठीक है, so these bottom 3 are options for left, center and right alignment, and top 3 options are for top, middle and bottom alignment। ठीक है, जैसे अगर सेकेंड रो का मैं साइज तुम्हें इंक्रीज करके दिखाऊं तो ओ बी लेफ्ट में है और हाइट वाइज वो वर्टिकली वो मिडिल में है। तो इफ आई वांट टू चेंज इट टू से टॉप, सो ओ बी विद इन द सेम सेल इटसेल्फ, इन सेम सेल इटसेल्फ उसकी अलाइनमेंट टॉप पे होगा। उसका साइज फिर से एडजस्ट करने के लिए मैंने 2 और 3 के बीच में कर्सर प्लेस करके डबल क्लिक किया। अंशुल आप प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में, लैपटॉप खुला हुआ है? ओके, so we can now change the size of rows and columns, width and height of rows and columns. We know how to select data using our keyboard itself. अच्छा, अब क्या होगा, एक बार प्रिंट करके देखते हैं। अगर मैं ऐसे इसको प्रिंट करूंगी तो क्या होगा, फाइल, फाइल पे जाके प्रिंट, प्रिंट पे जाके देखो क्या हो रहा है। जो फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं उनके आसपास बॉक्सेस बने हुए हैं, सब्जेक्ट में बॉक्स नहीं बना हुआ और उसके बाद तो बॉक्स दिख ही नहीं रहे हैं। दैट मीन्स जो एक्सेल में सेल्स बने होते हैं, दे आर फॉर आवर रेफरेंस ओनली। When we print, those cells and those rows and columns do not appear. The boundaries of the cells do not appear. So if you want the boundary to appear when you print the sheet, तब आपको क्या करना है, पूरा जो भी आपका टेक्स्ट है सबको सिलेक्ट करो और यहाँ पे जैसे वहाँ पे था ना बॉर्डर का ऑप्शन था वर्ड में, सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है। यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे हम क्लिक कर देंगे, ऑल बॉर्डर्स हम सिलेक्ट कर देंगे। नाउ वी विल प्रिंट, तो ये सब्जेक्ट के आसपास भी बॉर्डर बना जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रिंट करने के बाद देखो क्या हुआ, ये ई के बाद मेरे में तो डैश डैश लाइन आ गई, डैश डैश लाइन। वो किस लिए, दैट इज फॉर आवर रेफरेंस कि इफ यू वुड प्रिंट तो पेज की लिमिट सिर्फ इतनी है। नाउ आई वुड वांट attendance sheet so that one attendance sheet can be used for at least a month or 2. ठीक है, that means can be used for at least 20 to 40 classes, between 20 and 40 classes. तो उसके लिए अभी अगर हम करेंगे तो इस शीट पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, सिर्फ एक ही कॉलम आएगा ज्यादा से ज्यादा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, कॉलम्स के साइज छोटे कर सकते हैं। अगर हम नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर इनके साइज छोटे कर देंगे हमें वो दिखेगा ही नहीं। और मैम आगे जो कॉलम्स है अटेंडेंस के लिए उन्हें छोटा कर सकते हैं। चलो अगर हमने आगे वाले भी छोटे कर दिए तब भी मैक्सिमम 2 आएंगे ना उस डॉटेड लाइन से पहले, एक की जगह 2 आ गए। अब क्या करें, हम लैंडस्केप कर सकते हैं। यस, हम इसका ओरिएंटेशन, पेज लेआउट लैंडस्केप कर देंगे। लैंडस्केप करते ही क्या हुआ कि आई जे तक आ गया, जे के बाद वो डॉटेड लाइन आ गई है। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल सिलेक्ट ऊपर कॉलम के नेम पे क्लिक करना और उससे सिलेक्ट करते जाना काफी दूर तक। ठीक है, करने के बाद सिलेक्टेड रहने के बाद ही किसी भी 2 कॉलम्स के बीच में कर्सर प्लेस करके उनका साइज छोटा कर देंगे। क्या करते हैं, अगर हम मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हम साइज चेंज करते हैं तो उन सारे कॉलम्स का साइज सेम हो जाता है। ठीक है, तो मतलब मेरे को मल्टीपल डेट्स एंटर करनी होगी अटेंडेंस के लिए, तो मैं ऐसा नहीं है कि बार बार साइज चेंज करना पड़ रहा है। एक अब भी स्टिल व्हाट, देयर आर 10, 12
डेज का डेटा इसमें आएगा। ठीक है, तो अगर अटेंडेंस शीट चाहिए होगी सो आई वुड नो कि कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, तो आई कैन easily remove this subject का column, and that's how more number of columns will be added for marking the attendance. ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया है? यस मैम। ओके, मोस्टली हमारे अटेंडेंस शीट के टॉप पे क्या होता है? टॉप पे होता है क्लास नेम, लाइक बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 5 शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज, ये सारी डिटेल्स भी होती हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, फर्स्ट रो से हमने डेटा स्टार्ट कर दिया, so we need more data before the first row, so that means we would have to insert more rows. How do we चाहिए उस रो के नंबर पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली कॉलम के अगर लेफ्ट या राइट में चाहिए उस कॉलम के नेम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इंसर्ट, राइट क्लिक करके इंसर्ट। ठीक है, बट ये अभी चलो, अभी हमने एक रो ऐड कर दी, दिस वुड बी फॉर शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज, देन आई नीड 1 मोर रो फॉर क्लास डिटेल्स। तो उसके लिए या तो फिर से राइट क्लिक करके इंसर्ट करें या फिर कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई वुड रिपीट आवर एक्शन, रिपीट आवर प्रीवियस एक्शन, वुड रीडू आवर प्रीवियस एक्शन। ठीक है, कंट्रोल वाई करके 2 ऐड हो गए। I need just 1 lines gap also, so control Y करके एक और लाइन मैंने ऐड कर दी। All right, now in the first row we will write, अगर किसी से भी कोई स्टेप मिस हो गया है, पूछना है तो पूछ सकते हो। कंट्रोल Y वाला बता दीजिए एक बार। आपने एक रो इंसर्ट की, यस मैम, उसके बाद आप कंट्रोल वाई कर दो, अपने आप ही ऊपर और इंसर्ट हो जाएंगे। अब मुझे पूछना है, हाँ पूछो। आपने छोटी कैसे करी सारी एक साथ? हाँ जी, हम आपने छोटी कैसे करी सारी एक साथ? सारे कॉलम्स को इकट्ठा सिलेक्ट करो। ओके, मतलब काफी दूर तक मैंने कॉलम सिलेक्ट कर लिए थे, यहाँ पे आगे वालों पे करके दिखाती हूँ। इकट्ठा सिलेक्ट करो, किसी भी एक के बीच में जब ये डबल साइडेड एरो आ जाए तो उसको छोटा कर दो उसकी। जब हम इकट्ठे सिलेक्ट करते हैं तो सारे कॉलम्स एक साथ में एडजस्ट हो जाते हैं। डन हो गया? तो इन द फर्स्ट रो, हाँ हार्दिक हो गया? मैम मेरा नहीं हो रहा, पता नहीं। डबल साइडेड एरो कर रहे हो या ऐसे ही बस कहीं पे भी क्लिक कर रहे हो? डबल साइडेड एरो आने के बाद ही आप मूव कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, और सेकेंडली ऊपर से ही सिलेक्ट किया है ना, मतलब कॉलम के नेम से ही सिलेक्ट किया है? मैम कॉलम कंट्रोल तो नहीं दबाना ना? कंट्रोल नहीं प्रेस करना। कॉलम का जो ऊपर नेम है ABCD, जो लेटर्स लिखे हुए हैं, उन लेटर्स पे क्लिक करके आपने पूरा का पूरा कॉलम ही सिलेक्ट किया है ना? यस मैम। ओके, तो आफ्टर लाइक 15-20 मिनट्स मैं एक बार फिर से पूछती हूँ, फिर उसके बाद अपनी चलो। सो फर्स्ट रो में हमने कर दिया शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज, सेकंड में बीकॉम ऑनर्स सेम 5। अच्छा, अब ये तो टॉप पे है, तो इनमें इन वाले सेल्स में जो डी सेल है इसमें हमें वो नहीं चाहिए, सेल दिखना नहीं चाहिए, तो इन तीनों की मार्जिन को हम रिमूव कर देंगे, नो बॉर्डर। ठीक है, अब ये शहीद भगत सिंह लेफ्ट साइड पे शीट तो हमारी काफी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल तक जो इस शीट में आएगा उन सबको सिलेक्ट करेंगे, एंड देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ मर्ज एंड सेंटर, तो इस पूरी शीट के सेंटर पे आ जाएगा। वो सारे सेल्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो मर्ज हो जाएंगे और टेक्स्ट सबके सेंटर में आ जाएगा। ठीक है,
सिमिलरली हम बी कॉम ऑनर्स के लिए भी यही करेंगे। बी कॉम ऑनर्स सेम 5, इन दोनों को हम बोल्ड कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं एंड डन। हम इनके बीच के सेल कैसे हटाए एक बार फिर से बता दें। जो यहाँ पे डी पे थे, नहीं क्या, जो मैम बीच में सेल आ रहे थे वो अलग अलग, जैसे ए बी सी के बीच में वो आ रहा था। सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, जैसे जैसे यहाँ से लेकर जहाँ तक भी मेरे को चाहिए था सबके बीच में, उन सारे सेल्स को सिलेक्ट करके होम टैब पे एक ऑप्शन है मर्ज इन सेंटर, अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज इन सेंटर। हाँ और जी, ये मोड, हाँ जी, मैम आपने लैंडस्केप मोड सिलेक्ट कर दिया तो वो राइट साइड में तो वो लाइन आ गई थी, बट नीचे भी तो लाइन आएगी एक पर्टिकुलर स्पेस तक। हाँ आ गई, 28 के बाद आ गई। तो मैम उसको कैसे मैनेज करें? प्रॉब्लम क्या है, वो सेकंड पेज पे आ जाएगा। तो मैम फिर उसकी वो हेडिंग अगर चाहिए तो फिर ये है कि 28 के बाद में 29 से पहले मतलब फिर से रोज ऐड करो और फिर से हेडिंग वगैरह डाल दो अगर चाहिए तो, ठीक है। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, हम देखते हैं इस बार प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। फाइल करके प्रिंट, प्रिंट में क्या हो रहा है, अब भी उस सेल्स तो डिस्प्ले हो ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हमने अभी तक उनकी मार्जिन्स नहीं दिए हैं। तो ये जो आगे वाले सेल्स हैं, जितने भी हमने सेल्स बनाए हैं उन सब की मार्जिन सेट करेंगे हम। सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया। अब करके देखते हैं फाइल प्रिंट। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट पेज सही दिख रहा है, सेकंड पेज पे बाकी नेम्स आ गए, आगे सेल्स आ गए, सही दिख रहे हैं। थर्ड पेज पे क्या आया, सिर्फ सेल्स आए। फोर्थ पेज पे क्या आया, सिर्फ सेल्स आए। क्यों ये आए ये सेल्स, क्योंकि मैंने क्या किया था, उस मार्जिन के बाद भी जो डॉटेड लाइन आई थी उसके बाद भी एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम ये मार्जिन कहाँ से आया है, मेरे में आई नहीं। ऑल बॉर्डर्स, अंडरलाइन के राइट में ऑल बॉर्डर्स, अंडरलाइन के राइट में प्रिंट वाला मार्जिन कौन सा वाला, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है। हाँ। अच्छा वो एक बार प्रिंट करोगे ना तब आ जाएगी, एक बार फाइल पे जाके प्रिंट पे करो तो आ जाएगी। हाँ तो ये क्या हुआ कि सिंस मैंने ये आगे वाले सेल्स भी मार्जिन उनकी बना रखी थी तो इसलिए वो भी आ गए। दिस मीन्स वर्कशीट पे जहां तक भी कुछ ना कुछ हमने चेंजेस किया है, कोई टेक्स्ट एंटर किया है, नंबर एंटर किया है, सिर्फ मार्जिन ही बना दी, वहां तक वो प्रिंटिंग के टाइम पे सब कंसिडर करेगा। बट अलग पेज पे सिर्फ बॉक्सेस का तो किसी काम कुछ काम ही नहीं आने वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि हम सेल्स सिर्फ वहां तक सिलेक्ट करें जहां तक ये डॉटेड लाइन आ रही है। सिर्फ फर्स्ट रो पे क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की से लास्ट तक वो सारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फाइल पे जाके प्रिंट पे जाके देखो अभी भी वही 4 पेजेस आ रहे हैं और लास्ट 2 पेजेस में सिर्फ बॉक्सेस हैं। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे सेटिंग्स में देखो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट एक्टिव शीट्स, कि जिस शीट पे हम काम कर रहे हैं वो पूरी की पूरी शीट प्रिंट करने को बोल रखा है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन तो जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उस शीट पे भी सिर्फ उतना ही प्रिंट होगा। अब देखो सिर्फ प्रीव्यू में, प्रिंट प्रीव्यू में क्या हो रहा है, सिर्फ 2 शीट्स हमारे पास बन के आ रही है, वो थर्ड और फोर्थ एक्स्ट्रा शीट चली गई है।
ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज व्हेन इन रियलिटी यू वुड यूज इट सम टाइम इन फ्यूचर और आपको सच में प्रिंट करना होगा, तो बेस्ट ऑप्शन वुड बी शीट पे पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा होगा, जितना आपको एरिया चाहिए उसको सिलेक्ट करो और प्रिंट सिलेक्शन से लेकर प्रिंट सिलेक्शन सिलेक्ट करके फिर प्रिंट करो, वो जो अननेसेसरी चीजें हैं शीट पे वो अवॉइड हो जाएंगी। ऑलराइट, तो प्रैक्टिकली दिस इज वेरी यूजफुल। अब बोलो किसको क्या डाउट है। मैम ये 2000 वाले पे 2007 वाले पे नॉर्मल प्रिंट में वो आ रहा है, मतलब सारे समझ नहीं आया क्या आ रहा है, शेयर करके दिखाओ क्या बोल रही हो। और हार्दिक तुम्हारा भी नहीं हुआ था, तुम्हें भी अब शेयर करके पूछना है तो अब पूछ सकते हो, हार्दिक नहीं पूछा था ऐसे। यस मैम, कर दूं? हाँ और किसी को भी कुछ डाउट है, दिस इज द टाइम। मैम मेरा प्रिंट कर रहा हूँ तो खाली शीट आ रही है। शेयर करके दिखाओ तब पता चलेगा। मैम मेरी खाली तो नहीं आ रही है, बट प्रिंट प्रीव्यू में शेयर करके दिखाओ। ओके मैम, 1 मिनट। पहले हार्दिक तुम कर रहे हो? ठीक है मैम, मैं कर देता हूँ। करो। शेयर नहीं हो रही बेटा, वो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आया था प्रेजेंट नाउ का, उसके बाद आपकी स्क्रीन बनी होगी, उस पर क्लिक करो। प्रेजेंट नाउ के बाद योर एंटायर स्क्रीन आएगा, फिर उसके बाद स्क्रीन बनी होगी, उस पर क्लिक करो, तब प्रेजेंट का ऑप्शन एक्टिवेट होगा। तो मैम जब मैं योर एंटायर स्क्रीन पर क्लिक कर रहा हूँ तो शेयर पे वो आ ही नहीं रहा क्लिक करने के लिए। वही तो बोल रही हूँ, वहां पे स्क्रीन बनी हुई होगी, उस स्क्रीन पे क्लिक करो। नहीं समझ आया हार्दिक? हो गया, हम दिख रहा है? हाँ क्या करना है तुम्हें, क्या करना है? तो जो सेल्स है उनको छोटा करना है ना, कॉलम में। मैंने क्या बोला था उनके नाम पे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉलम? ई। या सो क्लिक ऑन ई। हाँ अब किसी भी एक को, हाँ अच्छा हो गया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। और किसको पूछना है? मैम 1 मिनट। करो, जो कोई भी कर दो। मैम इसमें नॉर्मल प्रिंट किया और प्रिंट प्रीव्यू में बस इतनी शीट आ रही है और शीट्स ही नहीं आ रही है। वापस से जाओ, होम आई मीन होम पे जाओ। इसको कहीं क्लिक करो, कहीं पे शीट पे साइड में प्रिंट प्रीव्यू का क्लोज करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है कहीं पे? प्रिंट प्रीव्यू तो तुम्हारे में है ही इतना, तो इतना ही आएगा, प्रॉब्लम क्या है? ओके मैम। आगे की तुमने सेल में ही नहीं। ओके मैम। यू आर शेयरिंग नाउ? यस मैम।
आई होप बाकी सबने भी जो जो आज सिखाया है सब साथ में ट्राई कर लिया है, किसी को कोई डाउट नहीं है? मैम दिख रहा है? हाँ जी, मैं फाइल पे किया है, ये करा प्रिंट, मेरी वाली शीट आ रही है। रुको, वापस से जाओ। एक बार इस शीट पे कहीं पे क्लिक करो, अब फिर से जाओ। प्रिंट एक्टिव शीट पे क्लिक करना। प्रिंट एक्टिव पे मैम। बुक करो। ये इंस्टॉल करने पे आ रहा है। हाँ ये सही आ रहा है ना, वापस से करो अब एक बार प्रिंट एक्टिव शीट। कुछ नहीं आ रहा। और वापस से जाओ और जो जिस एरिया में तुमने काम किया है उस एरिया को सिलेक्ट करो। अब जाओ प्रिंट सिलेक्शन। अभी भी मैंने वो साइड ही कॉलम्स भी किए थे, वो तो आएंगी क्योंकि उनकी मार्जिन नहीं डाली हुई आपने, उन ठीक है। कॉलम्स में कुछ है नहीं तो कुछ नहीं आएगा। वापस से जाओ फिर। मैं डाल प्रिंट सिलेक्शन पे भी हो रहा है, उस पे भी हो रहा है, सिर्फ प्रिंट एक्टिव शीट पे क्यों नहीं हो रहा? Oh no. उन सब से का हमें कुछ नहीं करना, फिलहाल कनेक्टेड भी नहीं है, छोड़ दो। Don't know. You know what happens is I have realized happen with students because the Microsoft Office is not the real version. अरे मैम रियल है बिल्कुल। Sure. मैम बिल्कुल श्योर। Purchased है। हाँ मैम, अभी जब लिया था साथ में आया था, ये 6 महीने हुए हैं। Then I have no answer for this. बंद होके फिर से करो, क्या पता हो जाए बंद करके फिर से। ओके चलो आगे चलते हैं। Let's move on to the second sheet. Second sheet पे क्या है? So I've collected some data related to these 10 companies. ठीक है, so this data is year wise. आप ऊपर 5th row में देखो तो क्या लिखा है? March 2008. So for March 2008, these are the different variables. For March 2008, so for ADF Foods Limited, this is the market capitalization. This is earnings per share value, consolidated earnings per share, PE, PV, and so on. ठीक है, समझ में आ रहा है? So there are many variables. S कॉलम तक मार्च 08 लिखा है, S कॉलम के बाद आया मार्च 09. दैट मीन्स 2008 तक का डेटा है S कॉलम तक, उसके बाद 2009 का डेटा है, फिर 2010 का डेटा है, और मैंने कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो की
पे प्रेस किया तो सबसे मैं एंड में पहुंच गई, और एंड में क्या आया, मार्च 2020। तो 2008 से लेकर 2020 तक का एनुअल डेटा है फॉर 10 डिफरेंट कंपनीज. This is what is available on this sheet. All right. So how will we move in this data is using keyboard, control key and arrow keys. So control and left arrow से बिल्कुल हम beginning में पहुंच जाएंगे, control and right arrow से हम बिल्कुल end में जहां तक text है वहां तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, control and down पे करें तो हम टेक्स्ट के एंड में पहुंच जाएंगे. एक बार और कंट्रोल एंड डाउन किया तो इस शीट में या एक्सेल की किसी भी शीट में मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, 6. So this is for just for your practice to make you people compatible or you know to make it easier for you to work on Excel. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप फ्लुएंट हो जाओगे, उतने आप कीबोर्ड का अच्छे से यूज कर पाओगे. तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो 10 कंपनीज हैं, उन 10 कंपनीज के जो नेम्स है वो आधे आधे दिख रहे हैं, पूरे नहीं दिख रहे हैं. तो एक कॉलम का हम साइज बढ़ा देंगे. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को ऐसे अरेंज करेंगे, ध्यान से सुनना, कि पहले एक कंपनी का नेम आना चाहिए, उससे रिलेटेड 2008 का सारा डेटा आना चाहिए, फिर नेक्स्ट रो में 2009 का डेटा, एक पूरी रो में 2008 से लेकर 20 तक का पूरा डेटा है. हमें इसे ऐसे अरेंज करना है कि फर्स्ट रो में 2008, सेकंड रो में 2009 अप टिल 2020. ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ADF फूड्स इज आवर फर्स्ट कंपनी. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसके नीचे नीचे हमें डेटा चाहिए, दैट मीन्स हमें ब्लैंक रोज चाहिए, तो AVT नेचुरल पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट, कि उससे ऊपर जो है रो इंसर्ट हो जाए. ठीक है, तो फर्स्ट जहाँ पे 7th रो में 2009 का डेटा आ जाएगा. मैं कंट्रोल Y की प्रेस कर रही हूँ, इसमें 2010, then 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So I've added as many rows as are needed to arrange the data year wise. ठीक है, for first row we would right click and insert. For subsequent rows we'll keep control key pressed and we would press Y key again and again. Keep control key pressed, press Y key again and again for as many rows as you want. ठीक है, second option is जैसे ऐसे ही हमें नेक्स्ट कंपनी के लिए भी करना होगा. तो जितनी हमें रोज चाहिए उतनी रोज सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दो. जितनी हमने रोज सिलेक्ट की होंगी उतनी ही बीच में इंसर्ट हो जाएंगी. ठीक है, ऐसे ही हमें हर एक कंपनी के लिए रोज. ऑलराइट, उसके बाद अब ये देखो, अब जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ तो टॉप वाली इंफॉर्मेशन वो जा रही है, राइट. सिमिलरली अगर मैं राइट में स्क्रॉल करके लेकर जाऊं तो कंपनी के नेम्स वगैरह या स्टार्टिंग का जो है वो तो चला जा रहा है. बट फॉर ईज ऑफ आवर यूज बेटर क्या होता कि जो ऊपर की हेडिंग्स हैं जहाँ पे नेम्स ऑफ वेरिएबल्स लिखे हैं वहां तक, और जो नेम्स ऑफ कंपनीज है वो फ्रीज. मतलब जब हम स्क्रॉल करें तो ये वाले रोज और ये कॉलम स्क्रॉल ना हो, वो फिक्स हो जाए. तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, जिस सेल से ऊपर और लेफ्ट में हमें फ्रीज करना है उस सेल पे हम क्लिक करेंगे. सो हमारे केस में हम B7 पे हम क्लिक करेंगे. व्यू टैब पे जाके फ्रीज पेन्स,
फ्रीज पेन्स पे जाके फ्रीज पेन्स, ठीक है। नाउ इफ आई स्क्रॉल डाउन तो ये ऊपर का जो इंफॉर्मेशन है वो शिफ्ट नहीं हो रही है, तो इससे मुझे डेटा अरेंज करने में आसानी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं राइट में जा रही हूँ तो वो नेम ऑफ द कंपनी वहीं पे ही दिख रहा है, हमें फिक्स हो गया, फ्रीज हो गया है, ठीक है, अंडरस्टूड। मैम एक बार और बता दीजिए। जिस भी रो तक हमें सारा डेटा फ्रीज करना है, तो मतलब मेरे को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रोज मेरे को फ्रीज करनी थी, तो मैं 7th रो पे क्लिक करूंगी, ठीक है। बट मुझे साथ में फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज, तो मैं सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करूंगी। तो सेकंड कॉलम और 7th रो का इंटरसेक्शन पे जो सेल है, बेसिकली हम उस सेल पे क्लिक करेंगे, मतलब जिससे ऊपर का और जिससे लेफ्ट का हमें फ्रीज करना है उस सेल पे क्लिक करेंगे। व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, व्यू टैब पे जाने के बाद फ्रीज पेन्स, फ्रीज पेन्स के बाद फ्रीज पेन्स। अब मेरे पास अनफ्रीज का ऑप्शन आ रहा है बिकॉज दे आर ऑलरेडी फ्रीज। अब फ्रीज पेन्स, ठीक है। तो अगर आपको ये फ्रीजिंग हटानी है तो हमें क्या करना है, वापस से व्यू टैब पे जाके फ्रीज पेन्स पे जाएंगे तो अनफ्रीज पेन्स का ऑप्शन आ जाएगा। हो गया, ये सबका हो गया। Yes, So ma'am. this is done when we want to freeze rows as well as columns together. If we want to freeze just one of the two, तो हमारे पास उस सपोज मेरे को सिर्फ ऊपर का जो डेटा है उसे फ्रीज करना था, मतलब मेरे को 6 रोज फ्रीज करनी है, तो मैं 7th रो सिलेक्ट करूंगी, 7th रो, व्यू टैब पे फ्रीज पेन्स पे फ्रीज पेन्स, ठीक है। फ्रीज पेन, सिमिलरली मेरे को सिर्फ नेम्स ऑफ कंपनीज को फ्रीज करना था, तो हम मतलब जिसको भी फ्रीज करना है जस्ट रिमेंबर उसका नेक्स्ट वाला रो या कॉलम को मैं सिलेक्ट करना है। तो इफ आई वांट टू फ्रीज ए कॉलम तो मेरे को बी कॉलम को सिलेक्ट करके फ्रीज पेन्स, ठीक है। हमारे करंट शीट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें दोनों को करना है, तो हम उस सेल पे क्लिक करके एंड देन वी क्लिक ऑन फ्रीज। हो गया यहाँ तक सबका? यस मैम। Yes, ma'am. इसके आगे का कल करते हैं, कैसे डेटा को अरेंज करना है। Today is 14. Please answer your attendance call. Harsh, Yes, ma'am. Anushka, Yes, ma'am. Anushka Gupta, right? Yes, ma'am. Okay. Alek, Nimisha, बोला। Present, ma'am. Okay. Sarvesh, Present, ma'am. Sarvesh, Yes. Saxena, Ayushi, Yes. Zainab, Present, ma'am. Shyansh, Harshit Garg. Okay, Ayushi marked. Shyansh, Harshit Garg, Karthik, Present, ma'am. Chetan, Present, ma'am. Tanush, Present, ma'am. Rhythm, Present, ma'am. Shubh, Present, ma'am. Nipun, Present, ma'am. Madhur, I can't see you, Madhur. Ma'am, my camera is on actually.
Deepak, Present, ma'am. Piyush, Rohit Gupta, Present, ma'am. Rohit, Present, ma'am. Vedant, Ananya. Present, ma'am. Okay, so class is over. Whoever is मैम मेरी ma'am. अटेंडेंस नहीं लगी है शायद। बेटा अभी अटेंडेंस कंटिन्यूड है, जिनकी अटेंडेंस हो गई दे कैन लीव। हार्दिक आहूजा, Present, ma'am. पुनीत, Present, ma'am. मल्लिका, Present, ma'am. Present, ma'am. विनीत, Present, ma'am. अभिषेक गौतम, Present, ma'am. मयंक, Present, ma'am. Present, ma'am. ताजिया, रजनीश। Present, ma'am. रजनीश, तुम्हारे पास क्लास का लिंक नहीं आया है? लिंक नहीं आया। डिस्क्रिप्शन। ईमेल आईडी बोलो। रजनीश ईमेल आईडी 1219। रजनीश 1219। एक मिनट रुको। Rajneesh 1219 @gmail.com, right? जी। योगेश, इरफान। Present, ma'am. दो ने बोला है, बोथ योगेश एंड इरफान आर प्रेजेंट। योगेश। Yes, ma'am. ओके। आदित्य चावला, Present, ma'am. अनुज, तंजीम, Present, ma'am. अंशुल, Present, ma'am. केशव, Present, ma'am. ममता, Present, ma'am. अभिषेक, Present, ma'am. भव्य 2766, Yes, ma'am. Present. दीपांशु, निखिल, अनमोल। Present, ma'am. अनमोल। Yes, ma'am. ओके। रूपल भट्ट, सुमनदीप कौर, प्रेजेंट मैम। और कॉनेक्ट 2720 हर्षित। Present, ma'am. ओके। Ma'am, 2110. 2110। कार्तिक प्लीज वेट। मैम 2529। 2529। मैम 22। अनुप्रिया। यस मैम। मैम 2768। 2768। Whoever is done can leave. 2767.